Good morning class. How are you? I hope you all are safe and fine at your place. Guys, you are welcome in my class, and today class is very important, and here we present with some important and new types of numericals which is related to your chapter, that is gravitations. Okay, let's be start. The first question is, if the force between two objects is capital F, force means gravitational force. Okay, if the gravitational force between two objects is capital F, when mass of each is small m, okay, and distance is small r, what is new gravitational force if distance is 1/2, means you have two objects, each object having mass small m and distance between these two objects is small r. At that conditions, the gravitational force acting between these two objects, that is capital F. Then find the new force when you change the distance between them is just half of its original distance. Okay, then what is the new gravitational force? Clear? Let's we start the solutions. That is solution. Your question says two object, suppose this is object 1 and both object having same mass, that is small m, distance between them is small r, distance between them is small r. Then force acting between them, that means force acting between them, that is gravitational force, which is capital F. Okay, in first case force, that means gravitational force acting between these object, that is capital F. Okay, and what is the formula of gravitational force? F is equal to capital G m1 m2 upon में r square. Then you put the value capital F is equal to G m1 m2 upon r square, that is mass of first object, that is m, this is m, into mass of second object, that is m, upon में distance का square, that means r square. This is the equation number 1. Are you write this? This is equal to G m square upon r square. This is equation number 1. Okay, clear? Then again your question says, if the distance is changed half of the original distance. Okay, here what is the new gravitational force if distance is 1/2, means just उसका हाफ हो जा रहा है. Then again condition क्या दे रखा है? Same object having same mass, that means m, then distance between them is 1/2 into r. अब इसके बीच की distance क्या हो गई? just half हो गई. Clear? In this condition your r becomes, means r2 is becomes 1/2 into r. अगर हम ये सपोज करें ये r1 था तो ये भी क्या हो जाएगा? r1, ये भी क्या हो जाएगा? r1. और यहाँ पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा? F1 हम सपोज करते हैं, ये आपका F1 हो गया और ये F1 हो गया, ये आपके हो जाएगा r1 एंड r1 का स्क्वायर. क्लियर? देन इन दिस कंडीशन gravitational force, that means F2 is equal to G m1 m2 upon r2 का स्क्वायर. पुट द वैल्यू G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, that is m, सेकेंड ऑब्जेक्ट, that is m, r2 वैल्यू 1/2 into r1 का स्क्वायर, 1/2 into r1 स्क्वायर. You solve this. This is equal to G m square upon 1/4 r1 square, r you write this, that is ये 1/4 है. ठीक है, ये आपका 4 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 into
जी एम स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. This is equation number 2 and this is the value of F2. Okay, from equation and equation 2 कितनी चेंज हो रही है. F1 इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपान में R1 स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपान में R1 स्क्वायर. वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा. फ्रॉम 1 and 2 F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F1. ओके, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को, दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन की डिस्टेंस को आपने जस्ट हाफ किया. एट दैट टाइम योर फोर्स विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, 4 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. मीन्स जो आपका ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट केस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका 4 टाइम्स आपका हो जाएगा जब आप उसके बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे, हाफ करेंगे. ठीक है, इसको आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, यू ऑल आर नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. आपने इसको क्या किया, 1 अपान में 2 किया, मीन्स इसका जस्ट हाफ किया. तो इसको हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 2 इंटू आर का स्क्वायर हो गया. ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये इक्विवेलेंट हो जाएगी प्रोपोर्शनलिटी के 1 अपान में 4 इंटू आर स्क्वायर. आर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपान में आर स्क्वायर. ठीक है, ये f की वैल्यू होगी. ठीक है, अब देखिए 1 अपान में 4 यहाँ पे किसके है, 1 अपान में आर स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, f के. अगर हम इसको f2 मानेंगे तो ये f2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो ये f2 ये f1 का होगा. तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किस 4 टाइम्स ऑफ F1. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. तो आप सिंपली अगर आपके कहीं ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन. नाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन. मीन्स आपका कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है जिनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 100 न्यूटन है. ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि उसकी डिस्टेंस में हम कितने टाइम्स की चेंजिंग करें कि उसका जो फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स एक्टिव हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन हो जाए. ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो गाइज यू ऑल आर नो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इसी फॉर्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो लेट्स बी सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. इन फर्स्ट कंडीशन एक्टिंग फोर्स बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स F1 इज 100 न्यूटन एंड सेकेंड केस ग्रेविटेशनल फोर्स F2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन. सपोज एट फर्स्ट कंडीशन मीन्स जब आपका फोर्स F1 है उस टाइम पे उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, R1. क्या सपोज किया, R1. एंड सेकेंड पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमने क्या सपोज किया, R2. ओके, देन यू ऑल नो, सिंस यू ऑल आर नो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ओके, देन F1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में R1 का स्क्वायर. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, 1 अपान में R1 का स्क्वायर. F1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अगेन F2, सिमिलरली F2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में R2 का स्क्वायर. आर दिस इज इक्वल टू K टाइम्स 1 अपान में R2 स्क्वायर. F2 की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, हमको चाहिए कि R1 कितने टाइम्स हम चेंज करें जिससे R2 की वैल्यू मिले और हमें फोर्स क्या मिल जाए, 50 न्यूटन. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे. ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग
इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा 100/50 इज इक्वल टू 100/50 इज इक्वल टू के 1 में R1 स्क्वायर के 1/R1 स्क्वायर अपान के 1/R2 स्क्वायर. दिस के एंड दिस के इज कैंसिल आउट. क्लियर. 1 में R1 स्क्वायर एंड 1 में R2 स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर और 100/50 को आप लिख सकते हैं क्या 2/1. ओके. अब यहाँ से आपको R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स न्यू डिस्टेंस क्या होगी R1 के टर्म में. देन R2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं R2 अपान में R1 इज इक्वल टू √2/1. क्यों? इस साइड स्क्वायर था, इस साइड आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो किसमें भी कम हो जाएगा ये स्क्वायर रूट में. दिस इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू √2/R1. मीन्स आप अपनी फर्स्ट डिस्टेंस में जिस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन था, उसकी डिस्टेंस में आप √2 टाइम्स का चेंजिंग करेंगे तो आपका फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन का हो जाएगा. ये आपका आंसर होगा. ओके गाइस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. गाइस क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वुड ए 70 kg मैन वेट ऑन मून. मीन्स 70 kg का मास का कोई आपका मैन है, वो कितना वेट फील करेगा मून पे. एंड फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी हिज मास ऑन अर्थ एंड मून. एंड उसका मास अर्थ एंड मून पे कितना होगा. गिवन g ऑन मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पे कितनी होगी 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. तो गाइज यू ऑल आर नो मास विल नॉट चेंज एनीवेयर. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता है. वो आप मून पे लेके जाइए या आप अर्थ पे आइए या अर्थ के इनसाइड जाइए, बट वेट विल बी चेंज. वाई? बिकॉज weight W is equal to m into g. m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity. The value of g will be changed if you change the place. Okay. g की वैल्यू चेंज होगी जब आप प्लेस को चेंज करेंगे. That's why the weight of the object will change, but mass of object will not change anywhere. Okay. Using this theory we solve these questions. Okay. The question given, mass of the man that is m is equal to 70 kg. Okay. Weight, g on moon is also given, that is equal to 1.7 meter per second square. Then what is the weight of man on moon. ओके. W की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. गाइज यू ऑल आर नो सिंस W इज इक्वल टू m इंटू g, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून. पुट द वैल्यू. Mass is 70 kg and acceleration due to gravity is 1.7. Multiplying this 70 से आप 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड 17 से आप 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 7 जा 119. ऑन 1 पॉइंट पे आप डेसिमल लगाएंगे. यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. That means weight on the moon is 119 Newton. Clear? This is the first answer. And second, what will be his mass on moon and earth? Then इस man का mass
अर्थ पे एंड मून पे कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. सिंस वी नो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट will not change anywhere, so mass of man on earth, that is ME, is 70 kg, and mass of man on moon, that is MM, is also 70 kg. This is the answer and it is also a answer. Okay, it's clear guys. Question number 4. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 98 meter per second square. Calculate first the maximum height to which it rises, and second total time takes to return to earth. Guys, this problem is based on the motion of the object under gravity. Okay, and you all are know what is the value of g and what is the initial velocity and capital velocity when any object will thrown vertically upward direction, thrown vertically downward direction, freely fall from some height. Then we will use that concept in these questions and find what is requirement. Okay, the solution given that a ball is thrown vertically upward with a velocity. We suppose this is the ground and here a ball which is thrown vertically upward directions. Okay, this is the object. This object is thrown vertically in upward directions. Okay, at that place it will be thrown vertically upward direction with a velocity. That velocity is 98 meter per second. Okay, 98 meter per second. That means this is the value of g, and it rises some height. That height is h. We suppose that height is h, and this height is the maximum height which is attained by the object which is thrown vertically in upward direction, and at that place v is 0. ओके, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव टाइम्स होगा. ठीक, अब एक तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी. क्लियर. एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है टोटल टाइम टेक्स टू रिटर्न टू अर्थ. मीन्स यहाँ से ये गया यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न होने में टोटल कितना टाइम इसको लगेगा, कितना टाइम ये लेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर. लेट्स सॉल्यूशंस. इनिशियल वेलोसिटी which is thrown the object vertically upward direction, that is 98 meter per second. What is the final velocity at maximum height? That is v is equal to 0 meter per second. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी. एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, दिस इज माइनस टाइम्स होगा. ठीक है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, दैट इज h. मैक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. एंड टाइम टेकन टू रिटर्न ऑन अर्थ, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a h. ठीक है,
ए एसेलरेशन होगा, ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जी के। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ v इज 0, वैल्यू ऑफ u इज 98 स्क्वायर प्लस 2, वैल्यू ऑफ g इज माइनस टाइम्स ऑफ 9.8 एंड हाइट इज मैक्सिमम हाइट दैट इज h max। क्लियर। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, 98 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h max। क्लियर। देन वैल्यू ऑफ h max यहाँ से h max की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 98। अगर आप इस पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। दिस बिकम्स 2 इंटू 9.8 इंटू h max, दिस इज इक्वल टू 98 का स्क्वायर एंड h max इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 98 अपान 2 इंटू 9.8। क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 10। क्यों? क्योंकि यहाँ वन प्लेस पे डेसिमल है, हमने इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अपान 2 इंटू 98। 98 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दिस इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49 मीटर। मीन्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द ऑब्जेक्ट दैट इज 490 मीटर। क्लियर। देन अगेन यू विल फाइंड total time takes to return to earth. Then from second equation, from first equation, that is v is equal to u plus gt, put the value of v is 0, value of u is 98 and value of g is minus times of 9.8 into t. Clear. This is equal to 9.8 into t is equal to 98, t is equal to 98 upon 9.8 or this is equal to 980 upon 98 or this is equal to 10 seconds. But this is not total time taken by the object to return to the earth. This is the only time taken which is takes by the object to attain the maximum height that is h max। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लेगा, t टाइम लेगा। तो एक बार तो गया t टाइम लिया और फिर दोबारा रिटर्न होगा तो फिर t टाइम लेगा। मीन्स टोटल टाइम यहाँ से उसको मूव करके फिर यहाँ वापस आने में 2t टाइम्स लेगा। तो देन इसी को आप 2 टाइम्स कर देंगे, टोटल टाइम टेकन by object to return on the earth is capital T is equal to 2 into t, this is equal to 2, value of t is 10, this is equal to 20 second। This is the answer. This is your second answer and it is your first answer। ओके। तो ये आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस था। ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और उसको पुनः वापस उस अर्थ पे आने में टोटल कितना टाइम वो लेगा। तो ये आपका सॉल्यूशंस था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस and new types of questions which is very important। okay। hello
Guys, question number 5, first part of question number 5, if ratio of time of fall of two bodies is 1:2, what is the ratio of their heights of fall? मीन्स कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक हाइट से फ्रीली फॉल कराए जाते हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा जो टाइम टेकन है मीन्स उस हाइट से अर्थ में आने का उसका रेशियो है 1:2. देन फाइंड द हाइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेशियो, मीन्स वो कितनी हाइट से दोनों ऑब्जेक्ट आपके नीचे छोड़े जा रहे हैं, फ्रीली फॉल हो रहे हैं, दोनों हाइट का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. सेकेंड केस है, टू बॉडीज आर मेड टू फॉल फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स इन द रेशियो 9:4. अब सेम जस्ट इसका अपोजिट है, आपके किसी हाइट से जो जिसका रेशियो आपका गिवन है, दो ऑब्जेक्ट फॉल कराए जाते हैं, उनका रेशियो 9:4 है. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर टाइम टू फॉल, देन वो कितना टाइम लेंगे उस हाइट से उस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लेंगे, उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स दोनों क्वेश्चंस आपके एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं. एक में आपको टाइम का रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है. सेकेंड वन इज रेशियो ऑफ height is given and you will find the ratio of time taken by the object. Okay, let's be see. So in this case your object will fall from some specific height. Suppose this is the object and height of the object from the ground is h. Okay, at this point if your object fall freely, that means it fall in downward directions, then initial velocity of the object at this height is 0. Clear? If we suppose the time taken by the object to falling from height h on height h and reaching the ground, that is t, then the relation between h, u and t, what is the relation? Guys, you all are know from second equation s is equal to ut plus 1/2 gt square. Clear? S distance, that means this will becomes h, this s removed by the h, and value of g is positive because it fall in vertically downward direction, freely fall in vertically downward directions. Okay, the time taken by the object, that is t. Put these value in this equation, you will becomes h is equal to ut plus 1/2 gt square. This is the most important equation for this case. Okay, अब then you will get here the velocity, that means initial velocity of the object at height h, means जिस हाइट से आपका ऑब्जेक्ट नीचे फ्रीली फॉल होगा उस टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 के इक्विवेलेंट होगी. तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे, सिंस u इज इक्वल टू 0, सो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. क्लियर हो गया? यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, 1/2 gt स्क्वायर. अब गाइज ये देखिए h की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, h इज डिपेंड ओनली ऑन द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. मीन्स हाइट जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना ज़्यादा होगा. कैसे? g की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, सॉरी g की वैल्यू आपकी जो होगी वो कांस्टेंट होगी ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ओके, दैट इज 9.8 एंड 1/2 इज आल्सो ए न्यूमेरिकल वैल्यू. इट मीन्स you will write here 1/2 into g is become constant, so h is inversely proportional to the square of the time. This is the important relation for solving this type of questions. Okay, this is the most important relation to solving this type of questions. Once again I repeat, when your object freely fall from a some height and time taken by the object to reaching the ground, that is t, then you will write the equation h is equal to ut plus half gt square. Okay, at some specific height from where the object will fall freely, that is u will becomes 0. You put this value in this equations, you will find h is equal to 1/2 into gt square, and
1 अपान में 2 इंटू जी, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। क्यों? 1 अपान में 2 ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगी। एंड जी की वैल्यू आप 9.8 लेंगे, सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फिक्स्ड है, ठीक है। तो टी की वैल्यू, एच की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे? टाइम के स्क्वायर पे। क्लियर? अब यहाँ से हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब वो अपना ये फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में आपका क्या है? फर्स्ट केस में है रेशियो ऑफ टाइम टू फॉल ऑफ टू बॉडीज, मीन्स T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। क्लियर? ये गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको? अगर आप ये सपोज करें कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हाइट h1 है तो उसके द्वारा टाइम कितना लिया गया? T1। देन h1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर। क्लियर? आर h1 इज इक्वल टू KT1 स्क्वायर एंड h2 इज इक्वल टू KT2 स्क्वायर। क्लियर है? देन h1 अपान में h2, देन h1 अपान h2, h1 अपान h2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो h1 की वैल्यू क्या है? KT1 स्क्वायर अपान KT2 स्क्वायर। K और K कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू T1 अपान T2 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। T1 अपान में T2 की वैल्यू T1 रेशियो T2 1 रेशियो 2 है तो वैल्यू पुट करेंगे 1 अपान में 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 4, मीन्स रेशियो ऑफ हाइट h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बी। बी में आपके गिवन है रेशियो ऑफ द हाइट, दैट मीन्स h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 9 रेशियो 4। देन आपको फाइंड आउट करना है T1 रेशियो T2। ठीक है? सिमिलर आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे h1 अपान में s2, सिंस h1 अपान में s2 इज इक्वल टू T1 अपान में T2 का स्क्वायर। सो T1 अपान में T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 अपान में h2। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ h1 इज 9 अपान में 4, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 अपान अंडर रूट 2 इंटू 2, दिस विल बिकम्स 3 अपान में 2। सो रेशियो ऑफ time taken by the object T1 ratio T2 is equal to 3 ratio 2. This is the second answer of the questions. Okay guys, ये questions आपको बहुत ही important है, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है? और अगर आपको थ्योरेटिकली पूछा जाता है सोल्यूशन लिखना है के लिए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप you will enjoy this video and it is helpful for you to solving some different types of numericals. So you all are solve these type of some other numericals. If you have any problem then you can ask me freely. Okay guys, thank you for watching this video.